Assalamu alaikum everyone. Um, we're going to talk about cementum again today. So this lecture is the second part of the cementum. In the last lecture we briefly talked about what cementum basically is, where is it present, and how does its thickness vary along the length of the root, the various types of cementum, various varieties of cementum, their distribution, their function, and then we talked about the composition of enamel, which are very important questions. I did briefly tell you about cementogenesis through this schematic figure, where I said that cementogenesis basically is the process of cementum formation. Just like dentinogenesis was the process of dentine formation, amelogenesis was the process of enamel formation, बिल्कुल इसी तरह cementogenesis is the process of cementum formation. Cementum formation basically, because cementum forms on the root, so it has to have a root or advancing root edge in order to start forming. So the cementum formation or the cementogenesis does not happen until we have the advancing root edge, which is during the late bell stage of root development. When the crown formation has completed during the root formation, during the late bell stage of root development, at the cervical loop, which you can see here, the zone of reflection of the outer and the inner enamel epithelium, this region, from here at the late bell stage, once the crown formation has completed, a bilayered structure develops called the Hertwig epithelial root sheath, which starts penetrating downwards into the between the dental follicle and the dental papilla, advancing this structure, this bilayered structure is actually, as it penetrates down into the ectomesenchyme, it maps out the future root and it eventually surrounds all of the dental follicle, which is then later converted into the dental papilla of the root and the pulp. So what happens when the root formation starts? The Hertwig epithelial root sheath develops and it invaginates between the dental papilla, which is on its inside here, and the dental follicle on its outside. Once the Hertwig epithelial root sheath develops or is visible or is formed, from that point onwards, that is the trigger point, or that is the signal for the cells of the dental papilla, which are present on the inside of the Hertwig epithelial root sheath, to differentiate into odontoblasts, and these odontoblasts then develop the root dentine. They start secreting the root dentine. At the same time, the Hertwig epithelial root sheath starts fenestrating. How does it start fenestrating? Within the Hertwig epithelial root sheath, apoptosis occurs and some of its cells undergo natural death, because of which certain incontinuities or certain breaches develop, or certain fenestrations develop within this Hertwig epithelial root sheath, as you can see here. Because of the development of these gaps within the Hertwig epithelial root sheath, the cells lying immediately outside the Hertwig epithelial root sheath, the cells of the dental follicle lying immediately adjacent to this Hertwig epithelial root sheath, they get a chance to penetrate through these gaps of the Hertwig epithelial root sheath. And once these follicular cells, they penetrate through the Hertwig epithelial root sheath gaps and they come into contact with the newly developed root dentine layer, some sort of epithelial mesenchymal interaction or signaling occurs between these two structures, and the dental follicular cells, they start differentiating into cementoblasts, and it is believed that some of the Hertwig epithelial root sheath cells themselves also transform into the cementoblasts. And once we get the cementoblasts, the next step naturally is the formation of the cementum.
So this is how the cementogenesis occurs. Because the dental follicle has to give rise to three different structures, from cementum to PDL and then the alveolar bone. Hence, we divide this whole structure of the dental follicle into three layers. The one right adjacent to the Hertwig epithelial root sheath, this one here, is called the innermost or the investing layer, and these follicular cells in the innermost or the investing layer develop or differentiate into cementoblasts, and that develops cementum. The ones middle region here, they are destined to develop into fibroblasts, and then eventually these fibroblasts secrete the periodontal ligament. Whereas the ones right adjacent to the alveolar bone here develop into the osteoblasts that are then destined to develop or secrete the bone matrix. So this is how generally the cementum formation is occurring, and that's it. That was the recap for the last lecture. Today we are going to discuss certain molecular factors that regulate cementogenesis. These molecular factors include the bone morphogenetic proteins, certain epithelial factors, certain adhesion molecules, GLA proteins, certain transcription factors, and then there are certain other miscellaneous factors that regulate the process of cementum formation. Starting with the bone morphogenetic proteins, these bone morphogenetic proteins, they promote the differentiation of the follicular cells to cementoblasts during the development of cementum and during the regeneration and repair of the cementum with the help of the bone morphogenetic protein 2, 4 and 7. And how do these proteins, they differentiate the cementoblast, or they help in the promotion or in the differentiation of the cementoblast, is due to some sort of epithelial mesenchymal interaction between the BMP4 and the follicular cells. The epithelial factors like the parathyroid hormone related proteins, the consequence of basal lamina, certain enamel proteins like amylogenin molecules, they are responsible for epithelial mesenchymal interactions within the dental follicle that leads to eventually the differentiation of cementoblast. So hence the epithelial factors like enamel proteins, basal lamina constituents, parathyroid hormone related proteins and the bone morphogenetic proteins, they all help in the differentiation of the cementoblasts from the follicular cells. So that is how they are regulating the cementogenesis process. Then we have certain adhesion molecules like the bone sialoprotein, the osteopontin. These molecules basically are multifunctional and they are responsible for the repair and the maintenance of cementum. These molecules have adhesion motifs which have an arginine glycine aspartic acid motif. This adhesion motif, basically what does it do? It helps the cells to adhere to the root surface, and in that process it is helping in the repair and maintenance of the cementum. So the adhesion molecules like the bone sialoproteins and the osteopontin, these molecules, what do? They help the cementum forming cells adhere to the root surface, and thus they promote or they maintain the cementum and help in the repair of the cementum. अब होता ऐसा है कि we need an unmineralized PDL space at all times between the cementum and the bone. एक ये रीजन है दो हार्ट टिश्यूज़ के दरमियान में जो कि एट ऑल टाइम्स अनमिनरलाइज्ड होता है. Cementum is a mineralized tissue, heart tissue, whereas bone on the other side is also a mineralized heart tissue. दरमियान में जो PDL स्पेस होती है ये एक अनमिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब ये अनमिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एट ऑल टाइम्स अनमिनरलाइज्ड ही रहना चाहिए फॉर दी हेल्दी
पेरिडोंटल हेल्थ ऑफ द टूथ। अब ये अनमिनरलाइज्ड कैसे रहता है कि जो है आपकी जो आपकी एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं, दे मेंटेन अ बैलेंस to keep this PDL space unmineralized at all times. So nature has provided the PDL space and the cementum with certain molecules जो कि PDL space को unmineralized रखता है at all times between two hard tissues. वरना एक साइड के ऊपर सीमेंटम भी कॉन्टीन्यूसली रिपेयर रिजनरेट कर रहा है, बोन भी रिपेयर हो रही है और उसका भी टर्न ओवर हो रहा है, तो बीच में PDL space, there are chances that PDL space could get calcified or could get mineralized, but it never gets mineralized unless there is an anomalous condition. और वो इसकी unmineralized रहने की जो reason है, that is because of the balance between the adhesion molecules like bones, yellow protein and the osteopontin. Then we have GLA proteins. GLA proteins क्या होती हैं? GLA proteins basically इनके अंदर गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड होता है विच इज़ अ कैल्शियम बाइंडिंग अमाइनो एसिड। अब वो प्रोटीन्स जिनके अंदर गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू हाई होता है, अ कैल्शियम बाइंडिंग अमाइनो एसिड, दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड GLA प्रोटीन्स। बोन GLA प्रोटीन और ऑस्टियोकैल्सिन बेसिकली इज अ मार्कर फॉर सेल responsible for mineralization, all sorts of cells responsible for mineralization, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट हो गए, सेमेंटोब्लास्ट हो गए, ओडोंटोब्लास्ट हो गए। तो ये जो GLA प्रोटीन है बोन की, जैसे कि ऑस्टियोकैल्सिन है, इट इज़ अ मार्कर फॉर ऑस्टियोब्लास्ट्स, सेमेंटोब्लास्ट्स एंड ओडोंटोब्लास्ट्स. These GLA proteins basically they regulate the crystal growth and energy metabolism during the cementum formation. There is a certain type of matrix GLA protein present within the PDL space that prevents the PDL from mineralizing. So we have two things now that are preventing your PDL from mineralizing or they are making sure that your PDL space remains unmineralized, and they are the matrix GLA protein and adhesion molecules like osteopontin. ठीक है? GLA प्रोटीन्स क्या है? GLA प्रोटीन्स बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू हाई होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली मार्कर्स होते हैं फॉर दी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन, एंड दी सेल्स आर दी ऑस्टियोब्लास्ट, दी ओडोंटोब्लास्ट एंड दी सेमेंटोब्लास्ट। और GLA प्रोटीन्स का फंक्शन ये होता है कि ये क्रिस्टल ग्रोथ और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। देन वी हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ मैट्रिक्स GLA प्रोटीन जो स्पेसिफिकली PDL स्पेस के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है, एंड दैट prevents the PDL space from mineralizing. So GLA along with the adhesion molecules like osteopontin prevents the PDL space from mineralizing. उसके बाद we have certain transcription factors right, like the RUNX2 and Osterix. ये जो transcription factors हैं, these transcription factors are controlled, their expression is basically controlled by the BMPs, and they are responsible for the differentiation of cementoblasts. So the transcription factors under the expression of the factors like BMP, they differentiate the cementoblasts. So we have numerous factors within the dental follicular cells जो आपके cementum फॉर्मिंग सेल्स सेमेंटोब्लास्ट की डिफ्रेंसिएशन को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा होता है, एंड दे आर द BMPs, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड द एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स. उसके अलावा वी हैव सर्टेन फैक्टर्स, मिसलेनियस फैक्टर्स लाइक alkaline phosphatases, proteoglycans that regulate the mineralization of cementum. Then we have certain factors like cytokines and growth factors that modulate the expression of the molecules like osteoprotegnin and RANK-L.
अब चूंकि हमने बोन नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता होगा क्लियरली कि ऑस्टियोप्रोटेक्टिन और रैंक एल क्या होता है। बेसिकली जो आपकी बोन है, जैसे कि एल्विलर बोन है या नॉर्मल बोन है, बोन का मेटाबॉलिज्म टर्नओवर हाई होता है एट ऑल टाइम्स। एक डेलिकेट बैलेंस नेचर ने मेंटेन किया होता है बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन। बोन टर्नओवर कर रही होती है एट ऑल टाइम्स। तो वो जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होता है? वो ऐसे मेंटेन होता है कि एट ऑल टाइम्स देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दी बोन फॉर्मिंग सेल्स एंड बोन रिजॉर्प्टिव सेल्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट्स। और बोन रिजॉर्प्टिव सेल्स कौन से हैं? ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो एट ऑल टाइम्स इन दोनों टाइप्स के सेल्स के दरमियान में एक बैलेंस मेंटेन होता है। कोई भी बैलेंस किसी एक भी साइड के ऊपर टिप नहीं करता। और वो बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, ऑस्टियोप्रोटेक्टिन एंड रैंक एल। अब ये जो आपका बोन रिजॉर्प्टिव सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, it is only activated by a molecule called the rank L, which is a ligand for a receptor present on the surface of the osteoclast called the rank. अब रैंक ऑस्टियोक्लास्ट आपका तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उसकी सरफेस के ऊपर जो रैंक रिसेप्टर लगा हुआ है उसके साथ आकर उसका लाइगेंड अटैच नहीं होगा, जिसको कहते हैं रैंक एल। rank L में L is for the ligand. So once this happens, once the rank L comes and it gets attached to the receptor rank on the surface of osteoclast, the osteoclast gets activated and it starts resorbing the bone. This is how the resorption occurs. But there is another molecule called the osteoprotectin, which is a decoy molecule, and it prevents the rank L from getting attached to rank on the surface of osteoclast, and in turn ये prevent कर रहा होता है resorptive cell which is osteoclast उसकी activation को. So this is how these two molecules are maintaining a balance between the bone formation and bone resorptions. अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स. सो दिस इज हाउ द miscellaneous factors are helping maintain the cementum. This completes the factors that regulate the cementogenesis. मैंने इनको tabulate इसलिए कर दिया because it is easier to memorize the functions of each of the molecular factor. किताब के अंदर there is a detail of all these molecular factors. Please go through it, and then if you have to memorize and jot down the points that are important to memorize, वो यहाँ पे tabulate हुए हैं. We have 6 types of molecular factors: the BMPs, the epithelial factors, the adhesion molecules, the transcription factors, cytokines, growth factors, and the GLA proteins. All of these regulate the cementogenesis by one way or the other. Now comes the cementogenesis. Cementogenesis, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, cemento is for cementum and genesis is for formation. So cementogenesis is basically the process of cementum formation. Cementogenesis basically टूथ जर्म के डेंटल फॉलिकल पार्ट के अंदर होता है. द डेंटल फॉलिकल्स फेड इज टू फॉर्म द cementum. So for convenience, we divide the dental follicle into 3 layers. An inner layer also called the investing layer, an intermediate layer and the outer layer. जैसे कि मैंने फिगर में भी शुरू में एक्सप्लेन किया था. The inner layer is the one that is right adjacent to the Hertwig epithelial root sheath, and this layer is derived from the neural crest cells, and this layer basically differentiates into the cementoblast. जैसे कि आपको अब दोबारा इस फिगर में दिखाती हूँ. बिल्कुल ये आपको नज़र आ रही है Hertwig epithelial root sheath fenestrated. इसके बिल्कुल बाहर जो डेंटल फॉलिकल की लेयर है ये वाली, इसको हम कहते हैं इनर लेयर. ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होती है और इस लेयर के सेल्स cementoblast के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं.
फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट लेयर विच इज़ द इंटरमीडिएट लेयर. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड द आउटर लेयर and it is mesodermal in origin, and this has to give rise to the fibroblast for the PDL development. The outer is the one adjacent to the alveolar bone. It is also mesodermal in origin, and it has to give rise to, or it has its cells differentiate into the osteoblasts that later develop bone. So from the figure here, this one right outside the Hertwig epithelial root sheath is the inner layer derived from the neural crust cell, और जिसकी fate है cementoblast differentiation. The one in the middle, this one here, is the intermediate layer that develops into the fibroblast, and it is mesodermal in origin. The one right adjacent to the alveolar bone here is also mesodermal in origin, and it differentiates into osteoblasts. So this is how the dental follicle is giving rise to three different structures. We are only going to talk about the inner layer and the cells of the inner layer because we are talking about cementogenesis at this point. Cementogenesis is going to be discussed in different steps. जैसे कि हमने varieties of cementum के बारे में बात की थी, so we are going to individually talk about the formation of primary cementum, the formation of secondary cementum, and then the formation of mixed cementum, and then the formation of acellular afibrillar cementum. So starting with the formation of primary acellular extrinsic fiber cementum, जैसे कि मैंने आपको varieties के बारे में जो बताया था, तो I told you that the primary cementum is also called the acellular extrinsic fiber cementum. अब इसको गौर से देखें. Acellular in this is for exclusion of the cellular varieties from the cementum matrix, and extrinsic in this part the origin of the fibers. एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि लोकल ओरिजिन नहीं है सीमेंटम के, या सीमेंटोब्लास्ट नहीं बना रही है सीमेंटम, ये कहीं बाहर से आ रहा है. तो ये दो बातें ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सीमेंटम आपने अपने जहन में रखनी है. The cementum formation starts immediately or simultaneously with the root development. Once the crown formation has been done completely, the cementogenesis or the root formation starts at the cervical margin and extends apically along with the root formation. जैसे कि मैंने पहले आपको फिगर में बताया था, let's go back to the figure again. Here, यहाँ पे क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है. ये वाला जो एडवांसिंग एज है इसको हम कहते हैं सर्वाइकल लूप, जहाँ से हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट डेवलप करती है और यहाँ पर एडवांसिंग रूट एज डेवलप हो जाता है. तो जैसे ही रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है साथ ही सीमेंटम फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है, और वो सर्वाइकल मार्जिन से स्टार्ट होती है और नीचे प्रोसीड करती है टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द रूट. ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर सीमेंटम फॉर्मेशन होती है. इट स्टार्ट्स एट द सर्वाइकल मार्जिन एंड एक्सटेंड्स एपिकली अलोंग विद द रूट फॉर्मेशन. As the epithelial root sheath of Hertwig proliferates downwards, mapping out the root, it separates from the dental follicle on one side and dental papilla on the other side by a basal membrane. Now what happens once the crown formation has been done fully, crown formation complete हो गई, तो क्या होता है कि रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट डेवलप करती है सर्वाइकल लूप से, एंड दैट न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट इट प्रोलिफरेट्स डाउनवर्ड्स, और वो पूरा जो फ्यूचर रूट रीजन होता है उसको मैप आउट कर लेता है. उसकी एक साइड के ऊपर ऑन द इनसाइड वी हैव द डेंटल पैपिला एंड ऑन इट्स आउटसाइड वी हैव द डेंटल फॉलिकल, और इन दोनों के दरमियान में एक बेजल मेम्ब्रेन होती है. जैसे कि स्कीमेटिक फिगर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर एडवांसिंग रूट एज. ये पेनिट्रेट कर रहा है डाउनवर्ड और ये पूरा फ्यूचर रूट रीजन को मैप आउट कर लेता है. सॉरी दिस, ठीक है. इसकी इनसाइड के ऊपर, मतलब एक साइड पे ऑन द इनसाइड यू हैव द डेंटल फॉलिकल एंड ऑन द आउटसाइड वी हैव द डेंटल
on the outside we have the dental follicle and on the inside we have the dental papilla, और इन दोनों के दरमियान में initially एक basal membrane होती है. Okay. Once the Hertwig epithelial root sheath develops, next step is ये जो newly developed Hertwig epithelial root sheath है, it induces the cells of the dental papilla to differentiate into odontoblasts. जैसे ही Hertwig epithelial root sheath develop करती है, उसकी inside के ऊपर जो cells होते हैं dental papilla के, जैसे कि ये Hertwig epithelial root sheath develop हुई, जो इसकी inside के ऊपर dental papilla के cells हैं, ये इनको signal send करती है Hertwig epithelial root sheath to differentiate into odontoblasts. ये यहाँ पर एक line बना लेते हैं odontoblasts, ठीक है, on the inside. और ये odontoblasts क्या करेंगे, ये dentine secrete करेंगे. So once the Hertwig epithelial root sheath has developed, it induces the cells of the dental papilla to differentiate into odontoblasts, and once the odontoblasts differentiate or develop, they start secreting the root predentine. जब रूट प्रीडेंटिन सिक्रीट होती है, इनिशियली वो अनमिनरलाइज्ड होती है, जैसे कि प्रीडेंटिन होती है अनमिनरलाइज्ड, और देन व्हेन इट बिकम्स मिनरलाइज्ड तो हम इसको हैलीन रूट डेंटिन कहते हैं या हैलीन लेयर कहते हैं, एंड इट इज़ अबाउट 10 माइक्रोमीटर्स वाइड. वंस द रूट डेंटिन हैज़ डेवलप्ड, अब ये क्या होता है कि जैसे जैसे रूट बन रही होती है ना, साथ साथ रूट डेंटिन डेवलप हो रही होती है. रूट डेंटिन जब डेवलप होती है तो साथ ही दो इवेंट्स होते हैं. जो आपकी Hertwig epithelial root sheath है, when it comes into contact with the newly developed predentine, it starts to fenestrate. उसकी अंदर apoptosis होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर कुछ cells की natural death होना शुरू हो जाती है by apoptosis, और epithelial root sheath के अंदर थोड़ी सी discontinuities develop हो जाती हैं. And the Hertwig epithelial root sheath also secretes certain enamel related proteins into the newly secreted collagen of the hyaline layer. ये जो enamel related proteins होती हैं, ये एमिलोजेनिन्स और एमिलोब्लास्टिन होती हैं, और इनका ये काम होता है कि इन्होंने epithelial mesenchymal interactions करनी होती हैं to induce cementoblast formation and to control the mineralization of cementum and hyaline layer and the root dentine. Hyaline layer is basically the root dentine. ठीक है? तो once root formation has started, Hertwig epithelial root sheath आपका develop हुआ, उसकी inside के ऊपर आपके पास dental papilla है, उसकी outside पे आपके पास dental follicle है. जैसे ही Hertwig epithelial root sheath develop होता है, वो dental follicle की cells को signal भेजता है कि आप odontoblast के अंदर differentiate हो जाएं, और वो odontoblast predentine secrete करना शुरू कर देते हैं. जैसे ही प्रीडेंटिन एपिथेलियल रूट शीथ के साथ कांटेक्ट में आती है, एपिथेलियल रूट शीथ के अंदर एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाता है और वो फेनेस्ट्रेट करना शुरू हो जाती है, और साथ ही वो एमिलोब्लास्टिन और एमिलोजेनिन सिक्रीट करती है न्यूली डेवलप्ड कोलेजन ऑफ द रूट डेंटिन के अंदर. और ये जो न्यूली सिक्रीटेड एमिलोजेनिन्स और एमिलोब्लास्टिन्स हैं, इनके दो फंक्शंस होते हैं. एक तो ये एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शंस कराती है, दैट लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ सीमेंटोब्लास्ट, और दूसरा ये सीमेंटम और न्यूली फॉर्म्ड रूट प्रीडेंटिन की मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करता है. अब न्यूली फॉर्म्ड रूट डेंटिन जिसको हम रूट प्रीडेंटिन जिसको हम हेलिन लेयर भी कहते हैं, उसकी मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करने का एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है क्योंकि रूट डेंटिन के डायरेक्टली ऊपर इवेंचुअली सीमेंटम ने डिपॉजिट होना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्राउन में डेंटिन के बिल्कुल ऊपर इनामल डिपॉजिट हुआ था, तो दोनों के दरमियान में एक जंक्शन बन गया था जिसको डेंटिनो इनामल जंक्शन कहते थे. अब यहाँ पर रूट में भी एक ऐसा जंक्शन डेवलप होना है जहाँ पर रूट डेंटिन के डायरेक्टली ऊपर जब सीमेंटम डिपॉजिट होगा तो दोनों के दरमियान में एक जंक्शन बनना चाहिए और बनता भी है, विच इज़ कॉल्ड दी सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन. अब ये जो सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन है, ये बनने के लिए हमें इनिशियली पूरी रूट की डेंटिन एक साथ मिनरलाइज नहीं करानी होती. जो रूट डेंटिन की मिनरलाइजेशन है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो डिफ़र करता है बाकी सारी
डेंटिन से, और वो ये है कि जैसे ही रूट डेंटिन डिपॉजिट होती है, पहले तो हर डेंटिन की तरह वो साथ ही मिनरलाइज नहीं होती, देयर इज़ अ लैग, और उस लैग के बाद जब वो मिनरलाइज होना शुरू होती है तो रूट डेंटिन, जिसको हम हेलिन लेयर भी कहते हैं, वो बिल्कुल सरफेस से मिनरलाइज नहीं होती, वो ऐसे मिनरलाइज होती है कि सरफेस की कुछ पार्ट अनमिनरलाइज, फ्यू माइक्रॉन्स जो हैं वो अनमिनरलाइज रह जाते हैं और नीचे से मिनरलाइज होना शुरू हो जाती है. And later, when the cementum has been deposited onto the root dentine, then the surface of the root dentine and the initial few microns of cementum, they mineralize together, और वहाँ पे एक जंक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उनके दरमियान में, जिसको हम कहते हैं cementodentinal junction. So we say that the outer surface of the root dentine basically undergoes a delayed mineralization, और ये डिले इन मिनरलाइजेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके एमिलोब्लास्टिन एंड एमिलोजेनिन्स, ठीक है. और once they have completed their task, ये एमिलोब्लास्टिन और एमिलोजेनिन्स, they are either lost, और या फिर इनके remnants they remain within the granular layer of the root dentine, ठीक है. अच्छा, मैं ये चीज़ आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ कि कैसे होती है. जैसे कि मैंने बताया कि जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर रूट डेंटिन, ठीक है. ये पूरी आपकी रूट डेंटिन की थिकनेस है, अबाउट 10 माइक्रॉन्स ये सिक्रीट हो गई है, ठीक है. अब ये जो रूट डेंटिन है ये मिनरलाइज तब तक नहीं कर, ये कम्प्लीटली मिनरलाइज नहीं करती. दिस रीजन, लेट मी लेबल इट, प्लीज बेयर विद मी. ये जो इसका रीजन है, दिस इज this boundary is towards the cementum, and this boundary is towards the dentine, ठीक है. जब ये मिनरलाइज होना शुरू करता है तो ये सरफेस का कुछ रीजन, जब ये मिनरलाइज होना शुरू करता है तो ये सरफेस का कुछ रीजन, जिसको मैं अभी रेड से लेबल करने लगी हूँ, ये फॉर एग्जांपल इतना सा रीजन मिनरलाइज नहीं होता और बाकी नीचे वाला रीजन मिनरलाइज हो जाता है, जिसको मैं भी एरो से, ये इससे नीचे नीचे जितना रीजन है वो सारा मिनरलाइज हो जाता है. तो इस डायरेक्शन के अंदर मिनरलाइजेशन होती है रूट डेंटिन के अंदर. सरफेस थोड़ी सी अनमिनरलाइज रह जाती है जो सीमेंटम की तरफ है, दैट रिमेन्स अनमिनरलाइज्ड, और जो उसके नीचे का सारा पार्ट है वो सारा मिनरलाइज हो जाता है. सो वी से दैट द सरफेस ऑफ द रूट डेंटिन और द हेलिन लेयर undergoes delayed mineralization, and there is a reason for delayed mineralization, और वो ये है कि यहाँ पर सीमेंटम के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाता है और दोनों इकट्ठे मिनरलाइज होते हैं फिर, ताकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन बन जाए. आगे जाके मैं बताऊंगी कि सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन कैसे बनता है. तो अभी तक हमने ये बात की कि जैसे ही क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, सर्वाइकल मार्जिन से हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट डेवलप करता है और वो फ्यूचर रूट को मैप आउट करता है. उसकी अंदर वाली साइड पे डेंटल पैपिला होता है, बाहर डेंटल फॉलिकल होता है. इनिशियली ये बेसल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं. जैसे ही रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट बनती है, साथ ही सीमेंटोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट डेवलप होती है, वो अपने अंदर वाला जो डेंटल पैपिला है उसको सिग्नल सेंड करती है टू differentiate into odontoblasts. These odontoblasts, they start secreting the root predentine, which is also called the hyaline layer.
इनिशियली दिस रूट प्रीडेंटिन इज अनमिनरलाइज्ड, इसीलिए इसको प्रीडेंटिन कहते हैं, और थोड़े से लैग के बाद ये डेंटिन की तरह मिनरलाइज करती है. आफ्टर द प्रीडेंटिन हैज फॉर्म्ड, टू इवेंट्स अकर. फर्स्ट इवेंट इज कि जैसे ही प्रीडेंटिन के साथ हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट कांटेक्ट में आती है, उसके अंदर एपोप्टोसिस होता है और वो फेनेस्ट्रेट करना शुरू कर देती है. और उसके अंदर फेनेस्ट्रेशन का मतलब है कि इसके अंदर एक डिसकॉन्टिन्यूटी सी इस्टेब्लिश हो जाती हैं. और साथ ही हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट एमिलोब्लास्टिन और एमिलोजेनिन सिक्रीट करता है इनटू दी न्यूली फॉर्म्ड रूट प्रीडेंटिन. अब ये एमिलोजेनिन और एमिलोब्लास्टिन epithelial mesenchymal interactions करता है to induce cementoblast formation, and it also controls the mineralization of both cementum and the root predentin, which is also called the hyaline layer. और ये control of mineralization क्या होता है कि जो hyaline layer है इसकी mineralization surface के ऊपर नहीं होती, it starts a few microns within the surface, such that the outermost surface of the root dentine undergoes a delayed mineralization. And there is a reason for that delayed mineralization, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे एक cementodentinal junction बनना होता है. वो कैसे बनता है मैं आगे जाकर बताऊँगी. Once the amilogenins and amiloblastins have done this function, जिसके लिए वो destined थे, they are either lost and their remnants they may remain within the granular layer of द रूट डेंटिन. ये हो गया था फर्स्ट स्टेप. जो सेकेंड स्टेप होता है वो ये है कि जो आपकी हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट के अंदर फेनेस्ट्रेशंस डेवलप हुई हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एपोप्टोसिस, उन फेनेस्ट्रेशन से क्या होता है कि बिल्कुल बाहर क्या है, डेंटल फॉलिकल. तो डेंटल फॉलिकल के जो सेल्स हैं वो उन फेनेस्ट्रेशंस के दरमियान से पास कर जाते हैं एंड दे कम इनटू कांटेक्ट विद द न्यूली सिक्रीटेड रूट डेंटिन, द हायलाइन लेयर. अब जैसे ही ये डेंटल फॉलिकल सेल्स रूट डेंटिन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, रूट डेंटिन जो है उसके साथ कांटेक्ट में आने की वजह से सम सॉर्ट ऑफ reciprocal induction happens, some sort of exchange of signals happens, and these cells जो कि hyaline layer के साथ कांटेक्ट में आए हैं, ये बेसिकली आपकी इनर लेयर ऑफ द डेंटल फॉलिकल जो इन्वेस्टिंग लेयर है उसके सेल्स होते हैं, बिल्कुल जो डेंटल हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट के बाहर पड़े होते हैं. ये जो फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स हैं, दे डिफ्रेंशिएट इनटू द सीमेंटोब्लास्ट्स. दूसरा सोर्स ऑफ सीमेंटोब्लास्ट कुड बी हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट के सेल्स खुद एज अ रिजल्ट ऑफ एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं इनटू दी सीमेंटोब्लास्ट्स. तो दूसरा स्टेप क्या है, सीमेंटोब्लास्ट की फॉर्मेशन. जैसे ही हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट के अंदर फेनेस्ट्रेशंस डेवलप होती हैं, उसके बाहर जो डेंटल फॉलिकल के सेल्स हैं वो उन फेनेस्ट्रेशंस के दरमियान में से पास करके हायलाइन लेयर के करीब आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरैक्शन ये फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स डेंटल फॉलिकल के जो हैं ये सीमेंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, और कुछ हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट के सेल्स खुद ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं सीमेंटोब्लास्ट के अंदर. अब हमारे पास सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स प्रोड्यूस हो गए. अब ये जो सीमेंटोब्लास्ट हैं ये क्या करते हैं, जैसे ये डेवलप होते हैं ये कोलेजन फिब्रिल्स, शॉर्ट कोलेजन फिब्रिल्स जो कि परपेंडिकुलर टू दी रूट सरफेस होते हैं, सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. अब सीमेंटोब्लास्ट क्या करते हैं, सीमेंटोब्लास्ट सिक्रीट करना शुरू कर, जैसे ही सीमेंटोब्लास्ट डेवलप हुए, ये डिफ्रेंशिएट हुए फ्रॉम द डेंटल फॉलिकुलर सेल्स और फ्रॉम द हर्ट पिग एपिथेलियल रूट शीट इटसेल्फ, वो साथ ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो अपना कोलेजन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. ये जो कोलेजन होता है ये इनिशियली शॉर्ट फ्रिंजेस होती हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो आपकी रूट के परपेंडिकुलरली अरेंज हुए होते हैं. ठीक है. इसको हम कहते हैं फाइब्रस फ्रिंज. अब ये कोलेजन फिब्रिल्स जो हैं ये डायरेक्टली आपकी अनमिनरलाइज्ड रूट डेंटिन के ऊपर या उसके एडजेसेंट सिक्रीट हो रहे होते हैं, और इस सिक्रीशन के दौरान क्या होता है कि डेंटिन के जो अनमिनरलाइज्ड आपकी डेंटिन सरफेस डेंटिन रह गई थी वो, और सीमेंटम के न्यूली सिक्रीटेड फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं. इस इंटरमिंगलिंग की वजह से क्या होता है कि
आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग यूनियन बन जाता है बिटवीन दी सीमेंटम एंड दी डेंटिन. So what happens next is when the cementoblasts differentiate, they start secreting collagen fibrils, और ये collagen fibrils directly unmineralized जो डेंटीन की लेयर है उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर डेंटीन और सीमेंटम के फाइबर्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं. इस इंटरमिंगलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब हेयरलिन लेयर की मिनरलाइजेशन कंप्लीट होती है, जो पहले जैसे कि मैंने बताया था कि रुकी हुई थी. कैसे रुकी हुई थी? लेट मी शो यू. ऐसे रुकी हुई थी कि मिनरलाइजेशन जो है वो सरफेस से अनमिनरलाइज रह गई थी आपकी डेंटीन और नीचे वाली सारी मिनरलाइज हो गई थी. तो ये जो अनमिनरलाइज रह गई थी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सीमेंटोब्लास्ट, अब यहाँ पे मैं सॉरी लेट मी चूज अ डार्क कलर. जैसे कि ये सेल्स मैंने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल ये सीमेंटोब्लास्ट हैं, ठीक है. जैसे ही सीमेंटोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं ये फाइबर सिक्रीट, कोलेजन फाइबर सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. ये कोलेजन फाइबर्स आपकी ये अनमिनरलाइज्ड डेंटीन की जो लेयर है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है. इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो नीचे वाली तो सारी डेंटीन मिनरलाइज हो गई है. ये वाला जो लेयर था, जो टॉप लेयर थी डेंटीन की, ये अनमिनरलाइज्ड रह गई थी, ठीक है. अब जैसे ही सीमेंटोब्लास्ट्स अपने कोलेजन फिब्रिल्स सिक्रीट करते हैं, ये कोलेजन फिब्रिल्स डायरेक्टली इस अनमिनरलाइज्ड डेंटीन के ऊपर सिक्रीट हो रहे होते हैं. उसके रिजल्ट में क्या होता है कि सीमेंटम के कोलेजन फिब्रिल्स और अनमिनरलाइज्ड डेंटीन के कोलेजन फिब्रिल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं. एंड वंस दिस इंटरमिंगलिंग हैपन्स तो वापस मिनरलाइजेशन इस डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू हो जाती है. आपकी जो सरफेस अनमिनरलाइज रह गई थी पहले वो भी मिनरलाइज हो जाती है और साथ में सीमेंटम के जो न्यूली डिपॉजिटेड कोलेजन फिब्रिल्स हैं जो इंटरमिंगल कर रहे हैं आपकी अनमिनरलाइज्ड डेंटीन के साथ, वो भी साथ ही मिनरलाइज हो जाते हैं. और ये सारी ये सरफेस few microns of the surface of the dentine that was left unmineralized वो भी मिनरलाइज हो जाता है. और यहाँ पे मिनरलाइजेशन रुकती नहीं है, ये आगे सीमेंटम के अंदर फ्यू माइक्रोन सीमेंटम के अंदर कंटिन्यू करती है, जिसकी वजह से सीमेंटम के फाइबर्स और डेंटीन के फाइबर्स एक साथ मिनरलाइज हो जाते हैं और दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बन जाता है जिसको हम कहते हैं सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन. ठीक है, आई होप यू गेट what I'm trying to explain. ठीक है, mineralization of hyaline layer now starts and spreads outwards and continues a few microns into the fibrous fringe forming a cemento-dentinal junction. जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जब सीमेंटोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो साथ ही अपना कोलेजन फिब्रिल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. ये जो कोलेजन फिब्रिल सिक्रीट होते हैं ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और ये रूट सरफेस के परपेंडिकुलर सिक्रीट हो रहे होते हैं और इनको हम कहते हैं फाइब्रस फ्रिंज. और ये फाइबर्स डायरेक्टली चूंकि अनमिनरलाइज्ड डेंटीन के ऊपर सिक्रीट हो रहे होते हैं तो डेंटीन के फाइबर्स के साथ दे इंटरमिंगल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरमिंगलिंग नाउ व्हेन द हेयरलिन लेयर कंटिन्यूज टू मिनरलाइज तो वो सरफेस डेंटीन को भी मिनरलाइज कर लेती है और वो स्प्रेड आउट करती है. मिनरलाइजेशन वहाँ रुकती नहीं है, वो सीमेंटम के अंदर फाइब्रस फ्रिंज के अंदर कंटिन्यू हो जाती है और वो साथ में थोड़ा सा सीमेंटम भी अपने साथ मिनरलाइज कर लेती है. एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन बिटवीन द सीमेंटम एंड डेंटीन कॉल्ड द सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन. In this way, the first few microns of the primary cementum are firmly attached to the dentine surface by the help of these short fibers called the fibrous fringe, जो कि आपकी रूट सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है. देखो ये रूट सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड हैं. ठीक है, ओके. अब क्या होता है कि वंस द फाइब्रस फ्रिंज हैज़ डेवलप्ड, अभी तक जो आपके कोलेजन फिब्रिल्स सीमेंटम के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं वो सारे के सारे लोकली सिक्रीट हो रहे हैं, वो सीमेंटोब्लास्ट खुद सिक्रीट कर रहे हैं.
तो वो अभी तक एक्सट्रिंसिक नहीं है, वो इंट्रिंसिक हैं सारे फाइबर्स, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है कि प्राइमरी सीमेंटम के अंदर भी इनिशियली थोड़े से फाइब्रस फ्रिंज के जो फाइबर्स होते हैं वो इंट्रिंसिक ही होते हैं। अब सीमेंटोब्लास्ट क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो उन्होंने फाइब्रस फ्रिंज सिक्रीट की तो वो साथ साथ पीछे माइग्रेट करते जाते हैं अवे फ्रॉम द डेंटिनल सरफेस एंड दे कंटिन्यू टू डिपॉजिट मोर कोलेजन, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर बंडल्स थिकन और लेंथन करते हैं एंड दे ऑल्सो सिक्रीट the non-collagenous matrix proteins to fill up the spaces between these collagen bundles, and hence the collagen is of local and intrinsic origin, और ये सारा का सारा आपकी PDL की फॉर्मेशन से पहले हो रहा होता है। इस टाइम पे PDL के अंदर जो फिब्रोब्लास्ट ने अपने कोलेजन फिब्रिल्स सिक्रीट किए हैं वो पैरेलल टू द रूट सरफेस होते हैं और वो अभी तक सीमेंटम के अंदर एंटर नहीं हुए होते। अभी तक हमारे पास कोई एक्सट्रिंसिक फाइबर सोर्स नहीं है, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर वंस द cementodentinal junction has established, then the collagen fibers from the PDL space जो initially root surface के parallel होते हैं वो perpendicular to the root surface होते हैं, perpendicular direction attain करते हैं and then they become attached or stitched to the fibrous fringe, and this happens once the 15 to 20 micrometers of cementum has deposited, ठीक है। क्या होता है मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, सो दिस फिगर हेयर शोज द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द सीमेंटम। ये आपको नज़र आ रही है प्रीडेंटिन, डेंटिन, दीज आर योर सीमेंटोब्लास्ट, द सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स। उसकी ये हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट, ये एडवांसिंग रूट एज है, इसके इनसाइड यहाँ पे तो डेवलपमेंट हो गई है तो इतना अच्छा पता नहीं चल रहा। ये जो एडवांसिंग रूट एज है हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट, इसकी इनसाइड के ऊपर आपके पास डेंटल पेपिला है, बाहर डेंटल फॉलिकल है। जैसे ही ये डेवलप होता है ये हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट पेपिला के सेल्स को ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट कराते हैं और ये यहाँ पर डेंटिन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे डेंटिन सिक्रीट होती है, हर्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर एपोप्टोसिस होता है और वो एमिलोब्लास्टिन और एमिलोजेनिन भी सिक्रीट करते हैं जो कि कंट्रोल करता है मिनरलाइजेशन को ऑफ द हेयरलिन लेयर। जैसी जो हेयरलिन लेयर सिक्रीट हुई है, जो रूट डेंटिन सिक्रीट हुआ है, उसको सारा का सारा इकट्ठा मिनरलाइज नहीं कराता, वो उसकी सरफेस को थोड़ा सा अनमिनरलाइज छोड़ देता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर फेनेस्ट्रेशंस डेवलप होने की वजह से जो इसकी बाहर डेंटल फॉलिकल के सेल्स हैं वो यहाँ से दे गेट अ चांस टू पेनिट्रेट थ्रू दीज फेनेस्ट्रेशंस और एंड देन दे कम इनटू कांटेक्ट विद द हेयरलिन डेंटिन। जैसे वो हेयरलिन डेंटिन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दे अंडरगो एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरैक्शंस और वो सीमेंटोब्लास्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। कुछ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट के अपने सेल्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं सीमेंटोब्लास्ट में, और एक दफ़ा जब सीमेंटोब्लास्ट डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो कोलेजन फाइबर्स सिक्रीट करना शुरू कर देता है, सीमेंटम मैट्रिक्स सिक्रीट करना शुरू कर देता है। और वो सीमेंटम मैट्रिक्स इनिशियली इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स जिसको हम कहते हैं फाइब्रस फ्रिंज। ये जो कोलेजन फाइबर सीमेंटोब्लास्ट सिक्रीट कर रहे होते हैं, ये जो फाइबर बंडल्स सिक्रीट कर रहे होते हैं जिसको हम फाइब्रस फ्रिंज कहते हैं, ये चूँकि डायरेक्टली अनमिनरलाइज्ड डेंटिन के ऊपर सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो ये अनमिनरलाइज्ड डेंटिन के कोलेजन फिब्रिल्स के साथ ये सीमेंटोब्लास्ट के कोलेजन फिब्रिल्स इंटरमिंगल कर जाते हैं। ये जो सीमेंटोब्लास्ट सिक्रीट कर रहे होते हैं कोलेजन फिब्रिल्स, ये परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस होते हैं, ठीक है। इस फिगर में आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ योर डेंटिन एंड दिस, ये जो मार्क्ड रीजन है ये आपका प्री डेंटिन है जो कि अनमिनरलाइज्ड है। नीचे से देखो डेंटिन मिनरलाइज हो गई है और सरफेस से थोड़ी सी डेंटिन अनमिनरलाइज्ड रह गई है, और ये किस वजह से थी, ये एमिलोजेनिन और एमिलोब्लास्टिन ने डेंटिन को इस तरह से मिनरलाइज कराया कि उसकी सरफेस की मिनरलाइजेशन डिले हो गई, ठीक है। अब एट द सेम टाइम ये जो CB मेंशन हुआ हुआ है ये सीमेंटोब्लास्ट हैं। सीमेंटोब्लास्ट ने कोलेजन फाइब्रिल्स, ये जो एफ आपको लेबल हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ये कोलेजन फिब्रिल्स हैं जिसको हम फाइब्रस फ्रिंज कहते हैं, जो सीमेंटोब्लास्ट इनिशियली सिक्रीट करते हैं। ये सीमेंटोब्लास्ट फाइब्रस फ्रिंज और जो कोलेजन फिब्रिल्स
जिनको फाइब्रस फ्रिंज कहते हैं, ये सिक्रीट करते हैं इनिशियली, ये परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस होता है, एंड दीज कोलेजन फिब्रिल्स दे इंटरमिंगल विद दीज अनमिनरलाइज्ड डेंटीन के फिब्रिल्स। यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है सीमेंटोब्लास्ट से, ये देखें कोलेजन फिब्रिल्स निकल रहे हैं और प्री डेंटीन के फाइबर्स के साथ इंटरमिंगल कर रहे हैं। वंस दिस इंटरमिंगलिंग हैपन्स तो डेंटीन की जो डिलेड मिनरलाइजेशन थी वो कंटिन्यू हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स इज कि जो डेंटीन की सरफेस अनमिनरलाइज रह गई थी वो भी देखो मिनरलाइज हो गई, और साथ में ये देखो फाइब्रस फ्रिंज भी सारा परपेंडिकुलर टू द रूट सरफेस, आपको छोटे छोटे शॉर्ट फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं, ये भी साथ में मिनरलाइज हो गए। इस मिनरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि डेंटीन और सीमेंटम के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बन गया, जिसको हम कहते हैं सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन, जो आपको यहाँ पे DCG के फॉर्म में यहाँ लेबल हुआ हुआ नजर आ रहा है। देखो एक साइड पे डेंटीन है और दूसरी साइड पे सीमेंटम फॉर्मेशन हो रही है और दरमियान में जंक्शन बन गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से फाइब्रस फ्रिंज अब डेवलप होता है। अभी तक कोई भी एक्सट्रिंसिक सोर्स से कोलेजन फिब्रिल्स नहीं आए। फाइब्रस फ्रिंज सीमेंटोब्लास्ट ने खुद प्रोड्यूस किया है, तो उसका सोर्स इंट्रिंसिक है। अभी तक PDL स्पेस के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन ये होती है पैरेलल टू द रूट सरफेस। ठीक है, वंस द सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन डेवलप्स, मिनरलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फाइब्रस फ्रिंज मिनरलाइज हो जाता है और सीमेंटोब्लास्ट अबाउट 15 माइक्रोमीटर सीमेंटम डिपॉजिट कर लेते हैं एट द सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन। तो उसके बाद डेंटल पेडोंटल लिगामेंट में जो कोलेजन फिब्रिल्स पैरेलल टू द रूट सरफेस पड़े हुए थे वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और वो सीमेंटम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वो यहाँ आकर इन फाइबर्स के साथ स्टिच हो जाते हैं, and then we get the extrinsic source of the fibers from the PDL into the cementum, और इसलिए हम इस cementum को extrinsic fiber cementum कहते हैं। जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, सीमेंटोब्लास्ट ने फाइब्रस फ्रिंज ये डेवलप कर दिया था, ये जो सारा ये छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा है ये फाइब्रस फ्रिंज है। Once about 15 micrometers of cementum has been developed by the cementoblast, तो क्या होता है PDL से एक्सट्रिंसिक फाइबर्स, PDL से, चूंकि PDL से आ रहे हैं इसलिए हम इनको एक्सट्रिंसिक फाइबर कहते हैं, दे कम इनटू द सीमेंटम एंड दे गेट स्टिच्ड हेयर विद द फाइब्रस फ्रिंज। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, क्योंकि इसके अंदर मेजर सोर्स ऑफ जो फाइबर्स है वो बाहर से आ रही होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। और इस स्लाइड के अंदर यही सारी चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है। एट दिस स्टेज, वेट स्टेज, जब आपका फाइब्रस फ्रिंज मिनरलाइज हो चुका होता है, द कोलेजन फिब्रिल्स इन द PDL आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द रूट सरफेस एंड दे आर नॉट अटैच्ड टू द फाइब्रस फ्रिंज। वो अपनी स्पेस में होते हैं, अभी तक उन्होंने सीमेंटम में पेनिट्रेट नहीं किया होता। The cementum formation continues until about 15 to 20 microns of cementum has been formed, जिसके बाद the PDL collagen fibrils will become stitched to the fibrous fringe. This collagen is formed by the PDL fibroblast and it is coming from the PDL and is getting embedded into the cementum and stitched with the fibrous fringe, and it is from an outside source, hence it is called the extrinsic fiber, and hence the cementum will be called the extrinsic fiber acellular cementum. और ये जो सीमेंटोब्लास्ट ये सीमेंटम सिक्रीट कर रहे हैं, वो चूँकि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली सीमेंटम सिक्रीट कर रहे होते हैं, वो अपने मैट्रिक्स में खुद ही इंट्रैप नहीं होते, वो साथ साथ अवे फ्रॉम द डेंटिन सरफेस मूव करते रहते हैं, एंड देयर इज़ नो चांस दैट दे गेट इंट्रैप विद इन द मैट्रिक्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। तो इसलिए वो हमेशा सरफेस पे ही रहते हैं, तो इसलिए इसको एसेलुलर सीमेंटम भी कहते हैं। द एसेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम इज दस फॉर्म। ठीक है, I'm going to stop here with giving you a brief diagrammatic explanation of what I just said, and then I'm going to end here. अभी तक मैंने आपको क्या बताया इस डायग्राम में कि आपकी जो डेंटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है
जो डेंटिन रूट डेंटिन जो आपकी बनी थी वो साथ ही सारी की सारी मिनरलाइज नहीं होती, उसकी सरफेस थोड़ी सी अनमिनरलाइज रह जाती है। और उसकी सरफेस अनमिनरलाइज रहने की ये वजह होती है कि जैसे ही सीमेंटोब्लास्ट डेवलप होते हैं वो कोलेजन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं फाइब्रस फ्रिंज। ये फाइब्रस फ्रिंज शॉर्ट tufts of collagen fibrils होते हैं perpendicular to the root surface and they intermingle with the unmineralized dentin. अब जैसे ही ये अनमिनरलाइज्ड डेंटिन के कोलेजन फिब्रिल्स और न्यूली सिक्रीटेड फाइब्रस फ्रिंज एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते हैं तो हेलिन लेयर की मिनरलाइजेशन साथ ही कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। और वो कंप्लीट कैसे होती है कि पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर वो उल्टी डायरेक्शन में जाती है और जो सरफेस अनमिनरलाइज रह गई थी उसको भी साथ मिनरलाइज कर जाती है और वहाँ रुकती नहीं है, वो सीमेंटम के अंदर कंटिन्यू हो जाती है और वो कुछ माइक्रॉन्स सीमेंटम की भी अपने साथ में मिनरलाइज कर जाती है और कर देती है और साथ में वहाँ पे जंक्शन जो है दोनों टिश्यूज़ के दरमियान में बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड द डेंटिनो सीमेंटल जंक्शन। अभी तक बाहर से कोई फाइबर्स नहीं आए, सारे फाइबर्स की सोर्स इंट्रिंसिक थी क्योंकि सीमेंटोब्लास्ट सिक्रीट कर रहे थे, लोकल थे। अभी तक आपकी जो पीडीएल स्पेस है, ये आपकी जो है, इसको मैं लेबल कर देती हूँ, ये पीडीएल स्पेस है आपकी, ठीक है। इस पीडीएल स्पेस के अंदर अभी तक जितने भी फाइबर्स हैं वो सारे इस डायरेक्शन में पड़े होते हैं, पैरेलल टू द रूट सरफेस, ठीक है। जब यहाँ पर अबाउट 15 to 20 माइक्रॉन्स सीमेंटम का सिक्रीट हो जाता है तो ये फाइबर्स यहाँ से सीमेंटम के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर फाइब्रस फ्रिंज के साथ अपनी ओरिएंटेशन ये चेंज करते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं और ये इधर आकर फाइब्रस फ्रिंज के साथ स्टिच हो जाते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी गेट एन एक्सट्रिंसिक सोर्स ऑफ फाइबर्स, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम कहते हैं। और मीनवाइल ये जो सीमेंटोब्लास्ट हैं आपके, इनके अंदर मैं लिख देती हूँ CB, दैट इज़ फॉर सीमेंटोब्लास्ट। ये जो सीमेंटोब्लास्ट हैं ये आपके जैसे जैसे मैट्रिक्स सिक्रीट करते रहते हैं ये अवे फ्रॉम द डेंटिन सरफेस मूव करते रहते हैं एंड दे नेवर गेट इंट्रैप्ड इनटू द मैट्रिक्स दैट दे आर सिक्रीटिंग, क्योंकि नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स भी सिक्रीट कर रहे होते हैं जो कि कोलेजन फिब्रिल्स के दरमियान में सारी स्पेसेस को फिल आउट करता है और सीमेंटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो सीमेंटोब्लास्ट हैं ये साथ साथ away from the dentine surface move करते हैं, then they are always present on the surface of the forming cementum. They never get entrapped during the formation of primary cementum and hence we call this type of cementum the acellular cementum, ठीक है। तो इस तरह से acellular extrinsic fiber cementum develop होता है। अभी ये development complete नहीं हुई but we are going to complete it in the next lecture इंशाल्लाह। प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसको किताब से रीड आउट करके आइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।